quickly go across to Greha, my colleague, who's joining us from our results hub. Greha, you know, the story in the Gujarat continues to be very, very clear. But I want to ask you a particular question. Could you show us exactly what is it, where is it that the Aam Aadmi Party is gaining? Because there's a lot of talk about how the traditional vote base of the Congress Party is, in whatever percentages we will know eventually, is shifting to the Aam Aadmi Party. You know, they've not really managed to do what they were claiming they will do in Gujarat. And everything that they've managed to do, for example, right now at about 5 seats leads, is at the cost of the Congress Party. Just give us a sense of what you're picking up on the Aam Aadmi Party. Absolutely, and Shivani, the fact that you've asked this question is perfect timing, because just about 3 minutes back, we've got that one winner announcement when it comes to the Aam Aadmi Party. So there's one thing in Aam Aadmi Party's kitty that has happened. This one has come from, sir, ek baar winning list dikhaiye aap mujhe. This one has come from, where's this? Jamjodhpur. Ahir Hemant Bhai has won it from the Jamnagar district. One for the Aam Aadmi Party. That's the tally looking like when we're looking at the winner list in Gujarat. We already showed Hardik Patel winning his electoral battle, the first one, the maiden one for him. However, Valsad, we have seen BJP winning. There is the from Kaprada, you have BJP winning. We've just got an update from Mehsana district. Another win for the BJP. Rushikesh Ganesh Bhai Patel has won from there. Now, we were talking about how Himachal Pradesh could just turn out to be a photo finish, Shivani. So let's take a look at that tally also. We are looking at the main tally of Himachal Pradesh. If we look at right now, the declaration has happened on 28 seats. BJP 13, Congress is 13. That is the victory figure that is currently standing at. So 13-13. However, Congress does have a bigger lead with 38. So that's something. We're going to talk about Himachal in full detail in just a bit, because I do really want to know from you. Before I stepped into the studio, I was checking, the margins in Himachal Pradesh, and there are about 8 to 10 seats where the margins are hovering about 500. So I'm going to come back to you. Let me also go across to Delhi BJP MP Manoj Tiwari, who's joining us live now. Manoj Tiwari ji, दिल्ली के रिजल्ट तो कल आपने जो भी है डाइजेस्ट किए होंगे, लेकिन गुजरात में जो जीत मिली है भाजपा को, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, गुजरात की जीत तो बहुत ऐतिहासिक है और गुजरात के लोगों को अब लोग बार बार नमन करते हैं. शब्द भी छोटे हैं, भाव भी छोटे पड़ रहे हैं. ऐसी विजय तो बहुत कम ऐसी राजनीतिक पार्टियों को मिला है. तो ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है. नरेंद्र मोदी जी ने एक एक चीज जैसे सजा के रखा है गुजरात का, और जिस प्रकार से गुजरात का पुनर्निर्माण किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो गुजराती प्राइड हो. कहते हैं ना कि अभी हमारी कहीं बात हो रही थी तो हम लोग एक बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी हैज इंक्रीज्ड गुजराती प्राइड. हेंस गुजराती प्राइड कभी भी नरेंद्र मोदी जी को झुकने नहीं देगा. ऐसी बातें जब गुजरात में हो रही थी कि गुजराती प्राइड कभी भी नरेंद्र मोदी जी को लेट डाउन नहीं होने देगा, तो तभी हम लोगों को पता चलता था कि जहां प्राइड भी बढ़ा हो, विकास भी हुआ हो, सुरक्षा भी बढ़ी हो, तो ये एक बड़ा कमाल का मॉडल है गुजरात का, जो नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से सम्मान किया है. और जो लोग नरेंद्र मोदी जी की माता जी को अपमानित करने वाले शब्द बोले थे, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की औकात नापने की बात की थी, उनको भी गुजरात ने जवाब दे दिया. जी मनोज जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जब हमने गुजरात के बारे में बात करना शुरू करी तो लोगों ने कहा 25 साल 27 साल एंटी इनकम्बेंसी तो जरूर होगी, कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जहां भाजपा अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाएगी. पर जब हमारे कॉलीग्स रिपोर्टर्स ग्राउंड पर गए तो लोग काफी खुश थे. उन्होंने कहा कोई मुद्दे ही नहीं है. तो ऐसा बीजेपी क्या सही कर रही है जो दूसरों के लिए भी एक लेसन बन सकता है? यह आपने बहुत अच्छा सवाल किया. देखिए, बेसिकली जहां जहां भारतीय जनता पार्टी तब शासन की है जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हर उस स्टेट में बीजेपी ने इतना दिलों को छुआ है लोगों को कि अब एंटी इनकम बैसी नहीं होती है.
आपने सेम उत्तराखंड में देखा होगा, आपने सेम उत्तर प्रदेश में देखा, आपने सेम असम में देखा, और हम लोगों ने जो हिमाचल का भी जो रिजल्ट आया है वो अभी जरूर हमारे पक्ष में नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां भी नेक टू नेक फाइट होना, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल जनता ने दिल से नहीं हटाया। हम चौथी बार एमसीडी में भी, जैसे आपने कहा, हमने डाइजेस्ट कर लिया होगा। देखिए, हम चौथी बार एमसीडी में आने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी हमें 104 सीट मिला। और जो आम आदमी पार्टी 9 साल से डींगे हाँक रही है, उसको 220 कहने के बाद अपना 134 से संतोष करना पड़ा। मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। निश्चित रूप से एक मॉड्यूल है जो हर लोगों को सोचना पड़ेगा। जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हिमाचल में पड़ेगा, अभी भी नेक टू नेक फाइट सेवा है। समझ के काम करती है। जी, नेक टू नेक फाइट है। कांग्रेस को 38-27 लीड्स हैं, कुछ सीट्स पर विक्ट्री आ गई है, लेकिन हिमाचल की वो रिवायत जारी है कि हर साल पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है। हिमाचल में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ? उसकी समीक्षा पार्टी करेगी जी, जो भी अभी रिजल्ट फाइनली आ जाए, लेकिन हम समीक्षा करते ही हैं। हम जनता के जनादेश को सर माथे पे रख करके भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करती है, और हम समीक्षा करेंगे क्योंकि हमने अपनी सेवा में तो कोई कमी नहीं रखी है। और भी कुछ कारण होंगे, वी विल टॉक ओवर दैट, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी को आशीर्वाद मिल रहा है गुजरात में, वो एक बड़ा नजीर है, और उस पे हम लोगों को और भी अच्छा करने की ताकत मिलेगी। ये गुजरात की जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी पर भी। आपने बोला आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी बोल रही थी 200 वोट जीतेगी, 220 वोट जीतेगी। गुजरात में भी उन्होंने कहा था कि 70-80 सीट जीतेंगे, 90 सीट जीतेंगे, ऐसा बोला था उन्होंने। लेकिन आज जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कुछ अलग आ रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है, और इस वोट परसेंटेज और ये अगर 5 सीट भी जीतते हैं तो बोलेगी कि ये नेशनल मैसेज है और बीजेपी का अल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी ही है। नहीं, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से विज्ञापन के बल पे अभी तक आई है आम आदमी पार्टी, उसको ये भी सोचना चाहिए कि हिमाचल में क्या हो गया। उसको 1% भी उसको वोट शेयर नहीं मिला है। हाँ, और इसलिए हो रहा है कि पंजाब से सटा हुआ है हिमाचल, वहां झूठ नहीं चल सका। 6-7 महीने के पंजाब के शासन के बाद आपकी यही स्थिति, तो पंजाब ही आम आदमी पार्टी के राजनीतिक पतन का बड़ा कारण बन जाएगा। और मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से 11% उनका वोट शेयर दिल्ली में भी गिरा है, तो वो दिन दूर नहीं जब 2025 तक अब वो दोष भी नहीं दे पाएंगे किसी को। एमसीडी भी देख लें, सरकार तो उनकी देखी ली गई है। 2025 उनका आम आदमी पार्टी का समापन वर्ष हो सकता है। चलिए मनोज जी, वैसे तो कहते हैं कि ऐसे एपिटैफ नहीं लिखने चाहिए, ओबिचुरी नहीं लिखनी चाहिए पॉलिटिक्स में, बट आप जो बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं। Thank you so much for joining, and of course congratulations for the BJP victory in Gujarat. We'll see how Himachal